بتایا تو کچھ نہیں. ہاں ایک بندے نے بتا دیا چھوڑ رہے ہیں آپ کو, باقی انہوں نے نہیں بتایا. لہجہ سخت تھا. خیر انہوں نے پھر چھوڑ دیا مجھے بارڈر پر ایک بندہ تھا پہچان کا. میں نے کہا بھائی میں رہائشی ہوں کوئٹہ, کیونکہ میں کام کی بزنس کے حوالے سے میں کوئٹہ میں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں, نوشکی تک مجھے جانا ہے. میں نوشکی تک آ گیا. نوشکی تک آنے کے بعد پھر نوشکی سے میں نے لفٹ لے لیا. کیونکہ گاڑی مجھے مل گئی, نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا. نوشکی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے وہاں تک پہنچ گیا. تو گاڑی والے سے میں نے موبائل لے لی, مجھے کال کرنا ہے. تو میرا ایک کزن ہے, ان کا نمبر مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے ان کو کال کر دی کہ بھائی آپ مجھے ریسیو کر لیں, میں آ گیا ہوں. باقی وہ پہنچے تقریباً 2-3 گھنٹے ہوئے یا اس سے لگ بھگ آس پاس. ریسیو کر لیا مجھے انہوں نے. ریسیو کرتے ہی وہ حیران ہو گئے. مجھے تو علم نہیں تھا کیا ہوا ہے, کیا علم تھا پورا دنیا کیا مچا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کے لیے فاتح خوانی کر دی ہے. ملے, گلے ملے, رونا شروع کیا انہوں نے. میں نے بھی ایموشنل ہوتے ہیں. پھر جب میں کہا اب کیا کرے, اب تو میں تو مر چکا ہوں, اب کیا کرنا ہے. میں چلتے ہیں بس. ہمارا جو بڑا ہے, ہمارے عزیز بھی ہیں سردار صاحب, اور ہمارے قبائلی لیڈر بھی ہیں, بلکہ قومی لیڈر ہے میں کہتا ہوں. تو کہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں سردار صاحب سے کیا بنتا ہے, کیا کرتے ہیں, آگے کیا کرنا ہے. تو پھر ہم نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے سردار صاحب اور باقی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا آپ کر لیں, تاکہ کچھ باتیں جو کنٹروورشل ہو گئی تھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے, تاکہ ایک متنازع باتیں ہوتے ہیں فضا میں گھومتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. کیونکہ میں اپنا دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں, میں ایک تعلیم یافتہ بندہ ہوں, انجینئر ہوں, اور بس باقی میری پوری فیملی تعلیم یافتہ بندے ہیں, تمام کی تمام اچھی پوزیشنز پر ہیں. باقی ہمارے جو ہے نا, میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی ادارے کا میں خلاف نہیں ہوں, نہ ہی میں نے کسی ادارے کے خلاف کام کیا ہے, نہ کسی تنظیم, میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے. ہاں بزنس سے میرا تعلق ہے, کوئی میرے ساتھ بیٹھے تو میں بزنس کی باتیں اس سے کروں گا, ریئل اسٹیٹ کی باتیں کروں گا, باقی کسی اور چیز سے تعلق نہیں. اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو کہوں کہ اگر ہماری طرف سے, میری طرف سے یا میرے فیملی کی طرف سے اس دورانیہ میں جو بھی مطلب پریشانی کے عالم میں کچھ ہوا ہے, کسی کا دل آزاری ہوا ہے, کسی ادارے کے دل آزاری ہوا ہے, چونکہ ہمارے ادارے ہیں, ہمارا ملک بھی ہے, تو یا کسی شخص کا, کسی بھی انسان کا کوئی بھی, تو دل سے ان سے معذرت کرتے ہیں, تو دل میں نہ لیں. باقی ایک اور بات میں آپ کو میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کا جو عظیم رب ہے. اس دن کے لیے بھی میں شکر ادا کرتا ہوں جب میں اس دنیا میں پیدا ہوا, اس دن کے لیے شکر ادا کروں گا جب میں مروں گا, اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے الگ کیا, اور اس دن کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا, اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے لایا. بہت شکریہ, یہ رب کا شکر ہے. شکر الحمدللہ آپ سب لوگوں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہیر کا بڑا بھائی ہوں. تو جب ظہیر تاریخ 7 اکتوبر کے بعد منظریام پر نہیں تھے تو ہم لوگ اسی اسنا پریشان تھے 2-3 دن تک. اس کے بعد ہم لوگوں نے تھانہ زرغون میں FIR کر دیا. تو ہم لوگوں نے جو بھی قانونی چارہ جوئی ہوتا ہے وہ کر لیا. ہم نے کہا لاپتہ بندہ ہے تو اس کے لیے اداروں سے, لوگوں سے, جو بھی ہائر اتھارٹیز ہے سب سے رابطہ کیا جائے, ان کے بارے میں پتہ کیا جائے. تو 18 تاریخ کو شام کے ٹائم میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے پکچرز دیے, یار آپ لوگوں کا بھائی کا باڈی آئی ہے, اور فون بھی آیا کہ ہاسپٹل سے آپ لوگ اپنے بھائی کا باڈی لے کے جائیں. تو ہم لوگ ہاسپٹل گئے, وہاں پہ باڈی ہم نے دیکھا, اس میں کچھ سملیرٹیز تھے باڈی میں. تو یہ جیسے ناک کا نشان ہے اور یہ آئی بروز کا کٹ ہے, سارا ہم لوگوں نے اس سملیرٹیز سے ہم لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ وہ دوسرے ایکسپرٹس تھے میڈیکل, انہوں نے کہا یار ہم لوگوں کا فیلڈ ہے, بندہ آپ لوگوں کا ہے. تو ہم لوگ اور کچھ لوگ آئے, ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کا کہ اپنا
आप लोगों का बंदा है, इसको ले जाए। तो उस टेंशन के माहौल में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एज अपना भाई। हम उसको लेके गए, अपना कबायली हिसाब, अपना शरई हिसाब से उसकी इज़्ज़त से तदफीन किया और फातिहा लेना शुरू किया हम लोगों ने। तकरीबन 7-8 दिन हम लोगों ने फातिहा लिया। तो 7-8 दिन के बाद अभी एक दिन पहले तो फ़ोन आया मेरे कज़न का, यूसुफ भाई का, कि आप कोयटा में मुझसे मिलो, लाजमी काम है। जब हम लोग, उन्होंने कहा सरदार साहब के आप बैठक पे आ जाए। हम लोग आ गए, तो देखा हमारा भाई इधर ही बैठा हुआ है। तो ये तो है हमारे लिए एक मौजज़ा साबित हुआ। ये हैरान हो गए यार, हम लोगों ने फातिहा करके बैठ गए। लोगों इस दौरान लोगों का दिल आज़ारी हुआ। अगर किसी ने हमारे नाम से किसी दूसरे का दिल आज़ारी किया तो इसके लिए हम लोग माज़रत चाहते हैं। बाकी जो भी हो, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा भाई जिंदा सलामत आज हमारे पास है। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस बात को, दुनिया को उसी अमानत के तरीके से पहुँचा दिया। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद। ये बड़ा भाई है ज़हीर अहमद का, यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हीर बंगोज़ी का कज़न आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आए, हम लोगों को टाइम दिया। आप लोगों को बखूबी वाक़या ज़ियारत का वाक़या जो पेश आया सबको पता है। और इस दौरान सब लोगों ने, हम लोग एक दफ़ा कॉल आया हम लोगों पर कि ज़हीर का वो डेड बॉडी रखा हुआ है सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं और खुर्शीद और दूसरे मेरे कज़न थे, नहीं चले गए हॉस्पिटल। वहाँ पे हम लोगों ने पहचानने की बहुत कोशिश की लेकिन पहचान नहीं सके। तो पहचान नहीं सके। कुछ और लोग आए, बोलो भाई आप लोगों की बॉडी है, ये ज़हीर बलोच है। कुछ निशाना दिखाई दे रहे थे, बस हम लोगों ने यकीन कर लिया। परेशान भी थे हम लोग, बस उठा लिया और गुज़ार ले गए। तो वहाँ पे हम लोगों ने फातिहा ख्वानी की 7 दिन। अचानक ज़हीर का मुझे कॉल आया कल। मैं हैरान हो गया, कहता है मैं आया हूँ मस्तूम में हूँ। तो मैं यहाँ से चला गया ज़हीर को उठाने, मस्तूम से लाया। उसको मैंने पूरा वाक़या बताया कि भाई हमने आपकी फातिहा ख्वानी पढ़ी है और हम आपको तो फौत हो चुके हो, ये सिस्टम हुआ है। फिर मैंने कहा चलो सरदार साहब के पास चलते हैं, ये मशवरा करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आप मंजराम पर आ जाओगे। तो फिर हम लोग सरदार साहब के पास आ गए और मशवरा किया। बस आप लोगों का थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने ज़हीर अहमद बंगोज़ी और इसकी फैमिली की बातें सुनी, मेरा ख्याल है इसके बाद तो टाइम की ज़रूरत नहीं है जो कि इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने देखा इसी सोशल मीडिया पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है। हम बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, अदलिया से, कि सिर्फ इन चंद अफराद के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो ज़ियारत के मुकम्मल वाक़या पे बनाओ कि पाकिस्तान के शरीफ फैमिली एक फ़ौजी ऑफिसर को उसके फैमिली बच्चों के सामने उठा के उसके रिश्तेदारों को ले जाया जाता है, उसके बाद उसकी मसशुदा लाश मिलती है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि भाई इनको क्यों उठाया गया, इनका जुर्म क्या था। उसके बाद जो बंदे मारे गए हैं जुडिशल कमीशन में, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट तहकीक की जाए कि आया वाकई ये लापता है या नहीं है। जो ज़हीर अहमद का कहानी है आज आपके सामने है, जिंदा सलामत बैठा हुआ है, जिसके फैमिली ने 8-10 दिन से इसकी फातिहा ले रहे हैं। चलो फैमिली है, परेशानी में किसी को डेड बॉडी दी जाती है, वो फातिहा भी लेता है, वो रोता भी है, वो परेशान भी होता है, वो पिटता भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन अफराद से जिन्होंने इनके फैमिली के बगैर, इनके परमिशन के बगैर, इनकी कोशिशों के बगैर, कहने के बगैर ज़हीर अहमद बंगोज़ी का तस्वीर लेके रोडों पे हफ्ते से बैठे हुए हैं, तमाशा बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं अपने उन भाइयों से, उन बहनों से, उन माओं से कहना चाहता हूँ कि खुदारा एक बलूचिस्तान को एक दफ़ा फिर आग में मत आप लोग घुसाएं। हमारा एक फ्यूचर है, बलूचिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है। हमने, हमारा मंजिल बहुत आगे हमने जाना है।
हमारा सूबा बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी हैसियत रखता है। हमारा सूबा माला माल से भरा हुआ है। दुश्मन ममालिक जो पाकिस्तान दुश्मन है, उनकी नज़रें इस टाइम बलूचिस्तान पे है, हमारे वसाइल पे हैं, हमारे मादनियात पे हैं, हमारे साहिल और समंदर पे है। उनके बातों पे ना आए, बाटी मफादात पे न करें। चंद अनासिर हैं जो ये तहरीक चला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ये मिसिंग पर्सन के हवाले से कैंपेन कर रहे हैं, इनको बाहर से फंडिंग हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो सबसे पहले मैं खुद ट्राइबल हेड के अलावा, सियासी आदमी के अलावा एक बिजनेसमैन भी हूँ। फिर उसके अलावा सबसे पहले तो ये कमीशन बनाया जाए कि जो 12 माइनर ओनर्स हैं, इनसे ये दहशतगर्द तंजीमें भत्ता लेते हैं, पर टन पैसा लेते हैं, ये किस मद में लेते हैं? आप कौन सी आज़ादी लड़ रहे हैं? आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अब तो इन्होंने नया ड्रामा रचाया हुआ है, जितने कानून काम कर रहे हैं पर हेड इन्होंने 1000 रखा हुआ है। जो मजदूर हमें पर मंथ 1000 रुपये नहीं देगा, हम उसको कत्ल कर देंगे। 2021 मई में आप लोगों को पता हो, मार्गट में एक फोर्सेस के कैंप पे हमला किया गया, वहां से एक बिलाल नामी सिपाही को उठाया गया। चंद दिन बाद एक वीडियो जारी होता है, कुछ मुसल्ला लोग दहशतगर्द पहाड़ों में बैठे हुए हैं, एक अदालती कार्रवाई चला रहे हैं अपने बोर्डर्स। उसमें बाकायदा वो अपने गवाहान पेश करते हैं। बिलाल नामी उस FCT सिपाही को सज़ाए मौत दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, उसके बाद सज़ाए मौत दी जाती है। मैं इस अदलिया से कहता हूँ, इस रियासत के वारिसों से कहता हूँ, इस टाइम मौजूद गवर्नमेंट से कहता हूँ, इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आया उस बिलाल सिपाही को आपने किस आइन के तहत उठा के फांसी की सजा दी? एक रियासत के मौजूद होते हुए आप दूसरी अपनी रियासत कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ के मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहिए कि जो बंदे लापता हैं, आया वो वाटी लापता हैं। शायद पिछले साल एक वाक़या हुआ था कराची स्टॉक एक्सचेंज में, जो दहशतगर्द वहाँ मारे गए उनके बारे में यही कहा जाता था कि ये लोग मिसिंग पर्सन है, जो बद मज़ेदार पे ज़ियारत वाक़े में भी मैंने आप मीडिया के तवज्जुह से एक वीडियो देखी मैंने, जिसमें बाकायदा एक ऑपरेशन हो रहा है, कुछ बंदे सरकार के मुसल्ला उठाए हुए हैं, लड़ रहे हैं सिविल ड्रेस में, बाद में उनकी तस्वीरें मैच की जाती हैं। और जो मरने वाले लोग हैं, जो उस वीडियो में लड़ने वाले लोग हैं, वो तो सेम हैं। तो कैसा? और इसके अलावा इसी ऑपरेशन में मेरा ख्याल है एक फौजी मारा गया, जो मैंने आपके तवज्जुह देखा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ से कुछ शाफी बिरादरी ने उनका जनाजा भी अटेंड किया है। अगर ये ऑपरेशन ना होता तो आया कौन अपने बंदे को मारता है? हम नहीं समझते। मैं आप तो कहना चाहता हूँ कि ये ड्रामाबाजी बंद किया जाए। हमारे नौजवानों के, हमारे माओ बेटियों को, हमारी बहनों को रोडों पे ना बिठाया जाए अपने मफादात की खातिर, अपने सियासत की खातिर। मैं एज आ बलोच सरबराह की हैसियत से मैं अपने बलोच कौम से ये करता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। दुश्मन ममालिक के हाथों इस्तेमाल ना हो, इन चीज़ों को आप रिजेक्ट करें। हमारी नए नस्ल को तबाह की जा रहा है, हमारी नई नस्ल तबाह किया जा रहा है। अभी देखने में आपने देखा होगा, चंद सालों से हमारे बलूचिस्तान के नौजवान बलोच, पश्तून या रहने वाले दिर कबाइलों के बच्चे पाकिस्तान के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं। ये चीज़ दुश्मन को टुटक रहा है। उसने देखा और कुछ ना हो रहा कि इन नौजवानों को इस चीज़ में बरगलाया जाए, और वो अब कामयाब हो गया, क्योंकि हमारे मासूम लोग हैं, हमारे सादा लोग हैं। जैसे फैमिली आपके सामने बैठी हुई है, इनके बंदों को इनके कहने के बावजूद, इसरार के बावजूद इनको उठा दिया कि आपका बंदा यही है, आपका बंदा लापता था, आपके बंदे को फोर्सेस ने उठाया, आपके बंदों को एक बोगस और 2 नंबर ऑपरेशन में मारा गया। आज बंदा आपके सामने जिंदा सलामत है, वो अपनी ज़ुबानी ये चीज़ें कह रहे हैं। तो लिहाजा ये मुल्क हमारा है, इसके साथ आप ना खेलें। मैं अपने माँ बहनों से भी कहता हूँ, जो आपके असल लापता हैं उनकी तहकीक कराएँ। उस मिशन पे हम भी अपने बहनों भाइयों के साथ हैं। अगर किसी को गलत गुमशुदगी किया जाता है, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सबसे पहले वाज़ेह तो हो कोई असल लापता है या नहीं है। यह हमारे लाशों पे सियासत किया जा रहा है, हमारे नौजवानों पे सियासत किए जा रहे हैं। तो इन सब को जो इनकी ड्रामाबाजी है, हम इनको कंडम करते हैं। हम इस सारा जो प्रोपेगेंडा है, हम जुडिशल कमीशन अदलिया से भी कहते हैं कि तहकीक कराई जाए। हम चंद दिन बाद इंशाल्लाह अपने इस नौजवान को अदलिया में भी ले जाएंगे, हम दिखाएंगे।
हम साफ हैं। ये तालीम याफ्ता फैमिली है माशाल्लाह। इनके भाई अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं। बाकी जो डेड बॉडी इन्होंने दफनाई है ज़हीर अहमद समझते, ज़हीर अहमद बंगूज़ी के एक भाई डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर बशीर अहमद। तो उन्होंने मुझे आज बताया कि उसके हमने कुछ बाल जो मेडिकली होते हैं वो हमने लिए हुए हैं, किसी को भी शक को DNA के लिए ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह इनके पास अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब इसी तरह वो अवेलेबल हैं, वो आपको ये फैमिली प्रोवाइड कर देगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों से। सर एक मिनट, मैं गुलाम हैदर भी एक बात करें। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि इस अहम इशू पे तशरीफ़ लाए और हमें मौका दिया सुनने का। गुजारिश ये है कि एक लॉबी है, कुछ लोग हैं जो हमेशा से उन्होंने अपना जहन पाकिस्तान मुखालिफ बनाया हुआ है और हमेशा उनकी कोशिश रही है कि वो किसी भी कोई भी बहाना उनको मिले और उसको एक इशू बना के दुनिया के सामने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी इदारों को रुसवा करने की कोशिश करें। जीता जागता एक सबूत आप लोगों के सामने है। एक शख्स जिंदा सलामत अपने किसी ज़ाती काम से कहीं गया और उसके बाद ज़बरदस्ती उसके ख़ानदान को मजबूर किया गया, एक लाश थमा दिया गया, उसकी तस्वीरें अपने कैंपों में लगाई गईं और उसको मजबूर किया गया कि भाई ये आप लोगों का। और उनकी खुसूसन मैं इस मौके पर मामा कदीर एंड कंपनी खुदारा बलोच नौजवानों के साथ, बलोच कौम के साथ ये खिलवाड़ बंद करें। आप और आपकी जो कंपनी है, जिस तरह बैरूनी ताकतों, हमसाया मुल्कों और हमारे दुश्मनों के कहने पर जो अपने मकासद हासिल करना चाह रहे हो, खुदारा हमारी माओ बहनों को रोडों पे इस तरह न घसीटवाएं, हमारी माओ बहनों के साथ इस तरह ज़्यादतियाँ न करवाएं। मामा कदीर, आप अपने बेटे का बदला बलोच कौम से पूरी से ले रहे हो, पूरे बलोच कौम के जवानों से ले रहे हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तमाम मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि आप इन मामलात में हक़ाइक़ को देखा करें, हक़ाइक़ को छानबीन किया करें। उसके बाद कोई भी बात होती है, ज़ियारत ऑपरेशन कर्नल लईक का क्या कसूर था कि उसको इस तरह बेदर्दी से शहीद किया गया, उसके कज़न को शहीद किया गया, उसके बीवी बच्चों के सामने उसको उठाया गया। अगर कर्नल लईक दहशत गर्दों के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनता है तो कर्नल लईक और तमाम शोधा के लिए भी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और तमाम शोधा के लिए जो पाकिस्तान की धरती के लिए, पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, उनके लिए भी कमीशन बनने चाहिए। उनके लिए भी हमारे इदारे बाकायदा इक़दाम उठाएं ताकि ये जो दहशतगर्द हमारे आस्ती के सांप बने हुए हैं, जो जिनके सरबराह बाहर मुल्क बैठे हुए हैं और यहाँ के हमारे मासूम जवानों के साथ खिलवाड़ खेल रहे हैं, ये सिलसिला बंद हो सके। बहुत मेहरबानी। थैंक यू। सही ठीक जी 30 जी ये 30